محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات۔ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ کامن ویلتھ 2022 مقابلوں کا آغاز، شہنی زوبا سے حسام الدین و نکھت زرین ٹیم انڈیا میں شامل، ریاست و ضلع کی عوام کے لیے باعث فخر۔ رکن اسمبلی بیگارہ گنیش گپتا کا دورہ نظام آباد، ان کی قیادت سے متاثر ہو کر بی جے پی سینئر قائد کنجرلا بھوپتی ٹیارس میں حاصل کی شمولیت، وہ مستحقین میں کیا سی ایم آر ایف چیکس کی تقسیم۔ پی یو سی کمیٹی چیئرمین و آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب آرمور حلقے میں منڈلز کے اضافے و ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر عوامی نمائندوں نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے کیا اظہار تشکر۔ کاماریڈی میں پھر ایک بار چوروں کی منمانی، 3 گھروں میں چوری کرتے ہوئے 21 تولہ سونا و 2,15,000 رقم لے کر ہوئے فرار۔ تلنگانہ یونیورسٹی کا یو کے بی پی سی یونیورسٹی عہدیداروں نے کیا دورہ، تعلیم معیار میں اضافہ و مختلف جدید پروگرامز کے آغاز کے لیے عنقریب معاہدہ کرنے کے امکانات۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ماہ محرم الحرام کی اہمیت پر روشن ٹی وی کی خصوصی رپورٹ۔ محرم کے لغوی معنی حرمت والا ہے۔ اسلامی قمری مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی مہینوں کے نام قدیم عربوں کے رکھے ہوئے ہیں، سوائے ماہ محرم کے۔ قمری کیلنڈر میں اس کا نام صفر الاولیٰ تھا، جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد محرم الحرام سے بدل دیا گیا اور اس کے بعد کا مہینہ صفر الاخری صفر المظفر بن گیا۔ محرم کا نام اس لیے محرم ہوا کہ اس میں قتال کو حرام سمجھا گیا۔ یہ مہینہ 4 متبرک مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے اور بعد میں بھی یہ مہینہ متبرک سمجھا جاتا رہا۔ اس مہینے میں جنگ وغیرہ ممنوع تھی اور ہے۔ ہجرت کے تقریباً 17 سال بعد اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر ہجرت کے سال کو اسلامی سنہ ہجری کا پہلا سال قرار دیا گیا۔ محرم الحرام منسوب اللہ ہے اور یہ مہینوں کا سردار بھی کہلاتا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے دامن سے بہت سے اہم واقعات وابستہ ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت ادریس علیہ السلام کو مکان علیہ کی رفعت سے سرفراز کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکالے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام سے تکالیف اٹھا لی گئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام مغرب بارگاہ رب و ودود ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ آرائے سلطنت ہوئے اور اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اسی روز دنیا کو وجود بخشا گیا، اسی روز پہلی بار باران رحمت آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئی، اسی روز اللہ تعالیٰ نے عرش لوح و قلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جامع ہستی پہنایا۔ یاد رہے کہ جس طرح دنیا کا سنگ بنیاد عاشوراء کے دن رکھا گیا، اسی طرح دنیا کا خاتمہ یعنی قیامت بھی یوم عاشوراء کو واقع ہوگی۔ اسی روز حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 رفقا کے ہمراہ میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی ماہ کی 17 تاریخ کو اصحاب فیل نے کعبے پر حملہ کیا تھا۔ کامن ویلتھ 2022 مقابلوں کا آغاز، شہر نظام آباد کے 2 بڑے باکسرز نکھت زرین حسام الدین ٹیم انڈیا میں شامل، ریاست و ضلع کے لیے باعث فخر۔ کامن ویلتھ 2022 کا
برمنگھم میں آغاز ہو رہا ہے اور ہندوستان کی ٹیم بھی وہاں پہنچی اور رواں سال یہ بات کافی اہمیت کی حامل ہے کہ اس بار شہر نظام آباد کے 2 باکسرز ٹیم انڈیا میں شامل ہوئے ہیں، جس میں نکھت زرین اور حسام الدین شامل ہیں، جو شہر نظام آباد و ریاست کے لیے باعث فخر ہیں اور یہ وہ باکسرز نے اپنی سابقہ مقابلوں میں کافی بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ملک و ریاست کا نام روشن کیا ہے اور 100% امید ہے کہ وہ ان مقابلوں میں بھی بہترین مظاہرے کریں گے۔ ڈسٹرکٹ پرچار کمیٹی صدر جاوید اکرم کی نومنتخب راجیہ سبھا ممبر عمران پرتاپ گڑھی سے ملاقات و پیش کی گئی مبارکباد۔ تلنگانہ پرچار کمیٹی ممبر ایکس ایم پی جناب مدھو گوڈ یاشکی کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پرچار کمیٹی صدر و سابقہ ضلع وقف بورڈ صدر جاوید اکرم نے نیو دہلی میں واقع آل انڈیا کانگریس آفس پہنچ کر آل انڈیا کمیٹی مائنارٹی چیئرمین و نومنتخب راجیہ سبھا ممبر جناب عمران پرتاپ گڑھی کو مبارکباد پیش کی اور تلنگانہ کے حالات بالخصوص تلنگانہ کے مسلمانوں کے حالات سے واقف کروایا اور ان سے اپیل کی کہ وہ تلنگانہ کا دورہ کرتے ہوئے عوام کی ذہن سازی کریں تاکہ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی مضبوط ہو سکے، جس پر عمران پرتاپ گڑھی نے انہیں تیقن دیا کہ وہ جلد سے جلد تلنگانہ کانگریس صدر ریونت ریڈی سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کا دورہ کریں گے اور ایک جلسہ عام کے ذریعے ہندو مسلم تمام عوام سے خطاب کریں گے، جس پر ڈسٹرکٹ پرچار کمیٹی صدر جاوید اکرم نے خوشی کا اظہار کیا۔ آج نیو دلی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے دفتر پہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ یہاں پر آنے کی اہم وجہ ہمارے عالی جناب عمران پرتاپ گڑھی صاحب آل انڈیا کانگریس کمیٹی مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین صاحب سے ملاقات کرنا تھا اور ان کو ہماری شریمتی محترمہ سونیا گاندھی جی نے جو حال ہی میں راجیہ سبھا کا ممبر ان کو منتخب کیا، وہ مبارکباد بھی دینے آئے ہیں۔ ہم ہمارے ہر دل عزیز قائد علی جناب مدھو گوڈ یاشکی صاحب کے کہنے پر یہاں پر دلی آئے ہیں۔ دلی آ کر AICC آفس میں ہم نے عمران پرتاپ گڑھی صاحب سے ملاقات کی اور ہم نے تلنگانہ کے مسلمانوں کے بارے میں عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے ہم سے پوچھا تو ہم نے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو تمام چیزیں بتائی اور ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ جلد سے جلد تلنگانہ میں ایک مرتبہ آئیے۔ تلنگانہ کے مسلمان آپ کو سننے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کو ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ تو عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے کہا میں بہت جلد 15 اگست یا سپٹمبر کے مہینے میں حیدرآباد آؤں گا، تلنگانہ آؤں گا۔ آپ تمام لوگ پورے اقلیتی مائنارٹیز مل کر آپ لوگ ایک بڑا جلسہ رکھیے، اس جلسے سے میں مخاطب کروں گا اور تلنگانہ کے تمام مسلمانوں سے یہ ادباً گزارش کروں گا کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین اور TRS حکومت سے جو آپ لوگوں نے ان کے کہنے پر، ان کے وعدوں پر آپ یقین کرتے ہوئے 8 سال پریشانی اٹھائی، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کانگریس پارٹی آپ کی مدد کرے گی۔ کانگریس پارٹی کو ایک مرتبہ حکومت میں لے کر آئیے۔ کانگریس پارٹی BJP سے لڑنے کا اگر کسی میں دم ہے، خم ہے، طاقت ہے تو واحد پارٹی کانگریس جماعت ہے۔ تو عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے تلنگانہ کے تمام مسلمانوں کو 1-2 ڈسٹرکٹ کا بھی انہوں نے انتخاب کرنے والے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کا بھی دورہ کریں گے اور میں تلنگانہ کے تمام مسلمانوں کے تعلق سے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو بتایا ہوں اور ہمارے جو تلنگانہ کے جو مسلم قائدین ہیں کانگریس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان لوگ بھی تیار ہے کہ BJP اور TRS اور مجلس سے مقابلہ کرنے کے لیے اور تلنگانہ میں بہت جلد کانگریس کی حکومت آئے گی۔ عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے کہا آپ لوگ بنیادی کام کیجئے، عوام کے پاس جائیے، اقلیتوں کے پاس جائیے، مائنارٹی کے پاس جائیے، میجارٹی کے پاس جائیے، ہندو بھائیوں سے بھی ملیے کہ ہم سب مل کر کانگریس پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے۔ کانگریس پارٹی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی جماعت ہے۔ میرے جلسے میں ہندو مسلم سکھ تمام لوگ، مائنارٹی کا جلسہ نہیں بلکہ تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی کا جلسہ ہونا ہے۔ میں ضرور آؤں گا۔ جاوید بھائی آپ بے فکر رہیے، میں مدھو گوڈ یاشکی صاحب سے، ریونت ریڈی صاحب سے میں ان سے بات کر بہت جلد سے جلد میں تلنگانہ کا دورہ کروں گا۔ مہیلا چیتنیہ سدسیوں اور ہندو واہنی کی جانب سے خواتین میں قانونی شعور بیداری کے لیے اجلاس کا انعقاد، کثیر تعداد میں خواتین نے کی شرکت۔ شہر نظام آباد ہندو واہنی کی جانب سے شہر نظام آباد میں مہیلا چیتنیہ سدسیوں کی قیادت میں خواتین میں قانونی شعور بیداری کے لیے ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی ہائی کورٹ وکیل پی وملا رانی، لیلا سرینیواس لکشمن نے شرکت کرتے ہوئے خواتین کو ان کے قانونی حق کے متعلق شعور بیداری فراہم کی۔ اس موقع پر خواتین نے سوالات کے ذریعے اپنے خدشات کو دور کرتے ہوئے قانونی معلومات حاصل کی۔ اس اجلاس کے انعقاد میں انل کھدن و سری کانت نے اہم رول ادا کیا۔ تلنگانہ یونیورسٹی میں کورونا وبا کی لہر، ابھی تک 20 طلبہ ہوئے متاثر، طلبہ کی سہولت۔
वो वबा से हिफाजत के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से वक्फे से हेल्थ चेकअप व बूस्टर डोज कैंप का किया गया इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद के डिजपल्ली मंडल में वाक़ तेलंगाना यूनिवर्सिटी के चंद तलबा एक हफ्ता कबल हैदराबाद के दौरे पर गए थे, जहां से वापसी के बाद चंद तलबा में कोरोना की अलामतें ज़ाहिर होने पर इनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 3 तलबा को कोरोना मुस्बित आया और माबाकी तलबा को खरतीनिया किया गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में तमाम तलबा की सेहत की जाँच की गई, जिसमें अभी तक तकरीबन 20 तलबा को कोरोना मुस्बित आया। इनमें से अभी तक कुछ तालिब इल्म सेहत याब हो चुके हैं और माबाकी ज़ेर इलाज है और इन हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा के लिए बूस्टर डोज कैंप का भी अहतमाम किया गया, जिससे आज तकरीबन 210 तलबा व असातिज़ा ने इस्तिफ़ादा हासिल किया और ये कैंप अभी 2 दिन तक जारी रहने का डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खवी वो चीफ वार्डन ने इजहार किया और कहा कि तलबा की अच्छी सेहत के लिए यहाँ पर हर तरह की सहूलत का इंतज़ाम किया जा रहा है। ఏబీవీపీ తరపున ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నది ఒకటే, యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి 3 హాస్టల్స్లో అత్యవసరంగా కరోనా టెస్టులు నిర్వహించేసి పాజిటివ్ వచ్చిన విద్యార్థులకు క్వారంటైన్ కొరకు ప్రత్యేక గదులు ఉంచాలి। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी पार्टी के सीनियर कायद के भूपति राव ने अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता ने इस शहर के सुभाष नगर में वाक़ एमएलए कैंप दफ्तर पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 24 मुस्तहिक़ीन में 14,12,500 रुपये इमदादी चेक्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़यादत में गरीब व मुतवस्सित तबक़े की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दामात को रूबे अमल में लाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CMRF स्कीम को मुतारफ़ करवाए। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मरीजों को CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है और इसी तरह से TRS पार्टी की रुकनियत हासिल करने वाले हर एक कारकुन को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे अफराद जो हंगामी तौर पर इलाज के सिलसिले में खानगी दवाखानों से रुजू होने के बाद अपने अखराजात के बिल्स और दरख्वास्त शहर के सुभाष नगर में वाक़ एमएलए कैंप दफ्तर पर CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर इन अफराद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत इनकी माली इमदाद फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS पार्टी के कॉर्पोरेटर्स, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे मुस्तहिक़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। అర్బన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈరోజు అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యి వారి సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి మాకు డబ్బులు ఇప్పియమని చెప్పేసి మా ఆఫీస్కి వచ్చిన వారికి మేము ప్రాసెస్ చేసి ఈరోజు లబ్ధిదారులకు చెక్కులు అందించడం జరిగింది। ప్రతి వారం దాదాపుగా మేము ఈ చెక్కుల్ని పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నాం। నిజామాబాద్ నగరంలో ఎవరైతే మన అర్బన్ నియోజకవర్గాల్లో అనారోగ్యానికి గురవుతా ఉన్నారో వాళ్ళు ఫైల్స్ తీసుకొని వచ్చి మాకు అందజేస్తూ ఉన్నారు। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत इस्तीफादा कुरिनकान में 14,12,500 रुपए की अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों तकसीम। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत व अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर इनकी मौजूदगी में ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी पार्टी के कायद सीनियर कायद कंजरला भूपति राव ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले बीजेपी के पार्टी कायद के भूपति राव को TRS पार्टी का खंडवा पहनाते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS पार्टी बरसर इख्तिदार पर आने के बायस रियासती वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव इख्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल के यकसी के लिए मुख्तलिफ फलाह स्कीमात को मुतारफ़ किया। तेलंगाना की फलाह स्कीमात की मुल्क भर में
शोहरत है। यही वजह है कि मरकजी हुकूमत भी तेलंगाना की स्कीमात की तलखीद कर रही है। मुल्क की बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात के न सिर्फ चर्चे हैं बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाया जा रहा है। वज़ीर आला KCR की क़यादत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात मुतारफ़ की गई, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथ, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम, आसरा पेंशन, डबल बेडरूम मकानात, ऑटो व कार दानों के लिए माली इमदाद व दीगर का आगाज किया गया है। और इसी तरह से आशा वर्कर्स और हामिला खवातीन को सरकारी दवाखानों में मुफ्त तशख़ीस और मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही। इन्होंने मज़ीद कहा कि आसरा स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन, बेवाओं, तनहा जिंदगी गुजारने वाले खवातीन, एड्स और फ्लेपिया से मुतासर अफराद को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माजूरीन को 3116 रुपये जबकि दीगर इस्तिफादा कुनिंदगान को माहाना 2116 रुपये, जिसकी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS कॉर्पोरेटर्स, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदों, कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए मुकामी अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर सुदर्शन ने किया इजहार। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर DMNHO सुदर्शन ने मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए आज मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत का जायजा लेते हुए कहा कि इस साल बारिश के मौसम में मौसमी अमराज जैसे डायरिया, डेंगू और मलेरिया के फैलने के इम्कानात के पेश नज़र अवाम अपने घरों के इतराफ़ नाव जमा पानी के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाई जाए और इस मौसम में सर्दी और सरदर्द जैसी बीमारियां लाहक होने की सूरत में फिलफूर मुकामी सरकारी हॉस्पिटल से रुजू होकर तिब्बी इमदाद हासिल करे और इसके अलावा मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में MPP श्रीनिवास, MPTC बाबा, नायब सरपंच चाकुला श्रीनिवास, TRS मंडल पार्टी सदर रामू दीगर ने शिरकत की। ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో వచ్చేటంటే విష జ్వరాలు, మలేరియా కావచ్చు, డెంగీ కావచ్చు, చికెన్ గున్యా కావచ్చు, టైఫాయిడ్ కావచ్చు, మలేరియా కావచ్చు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని అరికట్టడానికి निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता को ICUMAST कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रविंदर ने किया मदु। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रविंदर ने अगस्त की 1 तारीख को वंशी होटल में मुनक़्क़िद होने वाले अल्ट्रासोनिक एंड मटेरियल साइंस फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता को शिरकत करने के लिए मदु किया। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात का 1 अगस्त से आगाज़। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात 1 अगस्त से मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं कहकर इंटरमीडिएट ऑफिसर रघुराज ने ये बात बताई। आज निजामाबाद बॉयज़ जूनियर कॉलेज किले में चीफ सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर के हमरा एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया और इस मौके पर मुखातिब करते हुए मिस्टर रघुराज ने कहा कि हर साल इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री के इम्तहानात मौसम गर्मा में मुनक़्क़िद किए जाते थे, लेकिन इस साल बारिश में मुनक़्क़िद किए जा रहे। सुबह पहले साल दोपहर में दूसरे साल के तुलबा का इम्तहानात मुनक़्क़िद किया जा रहा है, लिहाजा चौकसी बरतते हुए काम करें। मसाइल पेश आने की सूरत में इन्हें वाकिफ करवाने, इम्तिहानी पर्चाजात महफूज तरीके से लाने की, दोपहर के जवाबी पेपर पुलिस स्टेशन में महफूज करने, इसी तरह क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर लाते वक्त चौकसी बरतने की हिदायत दी। इम्तिहानी मराकज़ में तमाम सहूलतें फराहम करने, तुलबा हॉल टिकट इंटरनेट से डाउनलोड करने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि प्रिंसिपल की दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। ज़िले में 36 मराकज़ के लिए चीफ सुपरिटेंडेंट मुकर्रर किए गए हैं। इस इजलास में निजामाबाद जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल यकीनुद्दीन के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। ग्रुप 1 इम्तहानात के लिए उर्दू में निसाबी मवाद की तकसीम का आगाज़। दीगर सर्विस इम्तहानात के निसाब का अहाता। 9 मज़ामिन पर मुश्तमिल 3 किताबों की इशात। पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहानात में हिस्सा लेने वाले उर्दू मीडियम तलबा के लिए महकमे अखलाती बहबूद से उर्दू निसाबी मवाद तैयार किया गया और कोचिंग सेंटर्स पर उम्मीदवारों में तकसीम का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 और ग्रुप दीगर इम्तहानात उर्दू में इनेकाद का फैसला किया है। उर्दू इम्तहान लिखने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए निसाब दस्तयाब नहीं था। कमिश्नर ने अगरचे ग्रुप 1 इम्तहानात की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हैदराबाद और दीगर अजला में अखलाती उम्मीदवारों को उर्दू और इंग्लिश की कोचिंग का आगाज़ किया गया। हैदराबाद में उर्दू मिस्कन और माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल में तकरीबन 150 अखलाती उम्मीदवार कोचिंग हासिल कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम के लिए कोचिंग का अलहदा इंतज़ाम है। ग्रुप 1 और दीगर सर्विस इम्तहानात में अखलाती नुमाइंदगी में इजाफे के लिए 9 मुख्तलिफ मज़ामिन का अहाता करके
3 किताबें तैयार की गई। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटरी अखलाती बहबूद अहमद नदीम, हुकूमत के मुशीर ए.के. खान, डायरेक्टर अखलाती बहबूद शाहनवाज कासिम और दीगर ओहदेदारों के साथ उर्दू निसाब की तैयारी का जायज़ा लिया था। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील व प्रोफेसर एस.एस. शुक्र को उर्दू तर्जुमा और निसाब की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई। माहिर मुतरजमीन व निसाब के माहिरीन की खिदमत हासिल करके 1.5 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में उर्दू निसाब तैयार किया गया। पहली किताब में आम मालूमात और हालिया वाक़यात, साइंस और टेक्नोलॉजी और माहौलियाती मसाइल को शामिल किया गया। दूसरी किताब में तेलंगाना समाज, तहजीब, सकाफ़त और अदब, हुकूमत तेलंगाना की फलाही पॉलिसी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात और वाक़यात और जोग्राफिया को शामिल किया गया। तीसरी किताब में हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफ़त, हिंदुस्तान कायन और हुक्मरानी, हिंदुस्तान की अवामी पॉलिसी और मुल्की माशी समाजी तरक्की जैसे उमूर का अहाता किया गया। महकमा अखलाती बहबूद ने तेलंगाना उर्दू अकेडमी के इश्तराक से उर्दू निसाबी मवाद शाये किया। तेलुगु अकेडमी से इसकी प्रिंटिंग कराई गई। डायरेक्टर अखलाती बहबूद शाहनवाज कासिम ने हैदराबाद के ट्रेनिंग सेंटर्स पर उम्मीदवारों में उर्दू निसाबी मवाद तकसीम किया है। अखलाती बहबूद के तहत कोचिंग हासिल करने वाले तलबा को ये किताबें मुफ्त फराहम की जाएगी, जबकि दीगर उम्मीदवार ख़रीदना चाहे तो इसकी कीमत फ़ीकर 280 रुपये मुकर्रर की गई है। उम्मीद की जा रही है कि उर्दू निसाबी मवाद की तैयारी से ग्रुप 1 और दीगर सर्विस इम्तहानात में अखलाती उम्मीदवारों की नुमाइंदगी में इजाफा होगा। तेलंगाना में ग्रुप 1 सतह में अखलाती ओहदेदारों की कमी अहम मसला बन चुकी है, जिसके नतीजे में कई अहम महकमे जात में अखलाती ओहदेदार अहम ओहदों पर दस्तियाब है। निज़ामाबाद में 70 अफराद की कोरोना मुस्बित रिपोर्ट। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाक़ई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आज हेल्थ कैंप का इनेकाद मिलाते हुए कोरोना का टेस्ट किया गया। चीफ वार्डन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खवी ने बताया कि 65 तलबा का मुआयना करने पर इनमें से 3 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। क़ब्ल अज़ीज़ 70 अफराद की मुस्बित रिपोर्ट पाए जाने पर इनमें से 3 अफराद को निज़ामाबाद सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया गया, तो 7 अफराद को हॉस्पिटल के रूम्स में क्वारंटाइन किया गया। बाकी अफराद को घर भेज दिया गया। आज जिन अफराद की मुस्बित रिपोर्ट पाई गई, इन्हें भी क्वारंटाइन किया गया। खवी ने बताया कि ड्यूटी DMNHO तुकाराम और इमदलवई PHC मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद, हेल्थ एक्सपेंशन ऑफिसर डॉक्टर वेंकट ने आज हेल्थ कैंप की निगरानी की। कल सुबह 8 बजे से बूस्टर डोज दिया जा रहा है, लिहाजा इससे इस्तिफादा करने की ख्वाहिश की कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सारोजा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से कबल कोरोना के मुस्बित केसेस पाए जाने पर तशवीश जाहिर की जा रही है और ये कॉन्फ्रेंस के लिए एक सवालिया निशान है। मंडल की मुकाम पर मुकामी सरपंच श्रीनिवास ने हर घर का सर्वे करते हुए मुकामी अवाम को सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई। मोबकाल मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच श्रीनिवास ने कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक हर घर का सर्वे करते हुए सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी करने की हिदायत देते हुए मकानात के अतराफ जमा पानी के ज़ख़ीरे व कूड़ा कचरे को फौरी तौर पर हटाने के अलावा इर्द गिर्द की सफाई के बारे में आगाही की गई और इसी तरह अगर किसी शख्स को डेंगू व दीगर अमराज के ताल्लुक से अलामत ज़ाहिर हो तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट डॉक्टर से रुजू होने का इजहार किया और इसी तरह से कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फर्द हुकूमत की जानिब से फराहम करदा उसूल व ज़ाबित पर अमल करते हुए हर एक शख्स चेहरे पर मास्क, समाजी फासला पर अमल करके खुद को और अपने अरकान ख़ानदान की हिफाजत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत के मेंबरान, आशा वर्कर्स, मल्टी प्रेस, आंगनवाड़ी मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत। GST में इजाफा व राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट की मअतली पर हुकूमत के खिलाफ जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने TRS पार्टी के रुकने पार्लियामेंट व DMK तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हमरा गांधी मुजस्समे के पास तीसरे दिन भी एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने TRS पार्टी के रुकने पार्लियामेंट DMK और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हमरा GST में इजाफा और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट की मअतली पर हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में वाक़ गांधी मुजस्समे के पास तीसरे दिन भी एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। आरमूर में 2 नए मंडलों का क़याम अमल में लाने वाले ज़िले TRS सदर आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से वेन्नल सिद्धापुर मौज़ूआ से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। आरमूर मंडल में 2 नए मंडलों का क़याम अमल में लाने पर सिद्धापुर
विनल मौजूद से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम हैदराबाद में रिहाइश पजीर ज़िले टीआरएस सदर आर्मर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर पेश किया और शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। నూతనంగా ఆర్మూర్ 2 మండలాలు ఏర్పాటు చేసినందుకు మరి సిద్ధాపూర్ వన్నెల్కే గ్రామం నుంచి ధన్యవాదాలు తెలిపినందుకు పేరు పేరున కుల సంఘాలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ जिले कामारेड्डी मदनूर मंडल के मुकाम पर वाक़ मेनूर देहात पे 55 बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी के ज़ेर निगरानी मुनक़िद कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद। जिले कामारेड्डी मदनूर मंडल के मुकाम पर वाक़ मेनूर देहात में बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी के ज़ेर निगरानी में सुबह के अवलिन सातों में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट के 45 मोटरसाइकिल गाड़ियों, 5 ऑटो, 2 कार के अलावा 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस मौके पर इन्होंने मोटरसाइकिल मालिकिन से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करना अवाम को तकलीफ देना नहीं है बल्कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि बगैर दस्तावेज़ात के गाड़ी रखना या चलाना गैर कानूनी होने का इजहार किया और अवाम को समझाते हुए कहा कि अगर बगैर दस्तावेज़ात की गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ी हादसे का शिकार होने पर मोटरसाइकिल मालिकिन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मोटरसाइकिल मालिकिन गाड़ियों के दस्तावेज़ात रखें ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। बगैर दस्तावेज़ात की गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ होने का इजहार किया। కాలనీలో మేము ఈరోజు 6 గంటల నుంచి కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది. మొత్తం 58 మంది పోలీస్ సిబ్బందితో ఒక డిఎస్పీ, ఒక సిఐ, 6 మంది ఎస్ఐలు, మిగతా పోలీస్ ఫోర్స్తో ఒక కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రాం చేయించడం జరిగింది. ఇందులో మొత్తం 45 టూ వీలర్స్, 5 ఆటోలు, 2 కార్లు, 3 ట్రాక్టర్లు, మొత్తం 55 వాహనాలు సరైన పత్రాలు లేకపోవడము, లైసెన్స్ లేకపోవడము, ఇన్సూరెన్స్ లేకపోవడము, లైసెన్స్ లేని వ్యక్తులు నడపడం జరుగుతున్నటువంటి ఈ 55 వాహనాలు సీజ్ చేశాము। जिले कामारेड्डी के मुकाम पर सारिखों की हलचल, मुखफ़ल किए गए मकानात को टारगेट करके सरखे की वारदात अंजाम देने वाले चोरों से मुकामी अवाम डर खौफ में मुब्तला। जिले कामारेड्डी के मुकाम पर जयशंकर कॉलोनी, स्नेहपुरी कॉलोनी में वाक़ 3 घरों में सारिखों की जानिब से खुफ़ल शिकनी करते हुए सरखा करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर एएसपी श्रीनिवास रेड्डी ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर मौके वारदात का जायजा लेते हुए क्लोज टीम के जरिए सारिखों का फिंगरप्रिंट्स हासिल करने के बाद केस दर्ज करने का इजहार किया और कहा कि जिले कामारेड्डी के मुकाम पर वाक़ स्नेहपुरी कॉलोनी में मुकीम वेंकटेश फल्लू, जयशंकर कॉलोनी में सुकूनियत पजीर भास्कर कुंडल रेड्डी के घर की खुफ़ल शिकनी करते हुए जुमला 21 तोला तलाई जेवरात, 2.15 लाख रुपए नकद रकम के अलावा एक LED टीवी को सरखा करने की बात बताई सारिखों और कहा कि पुलिस मुलाजमिन की खुसूसी टीम की तश्कील अमल में लाते हुए सरखे में मुलविस सारिखों को बहुत जल्द तहवील में लेने का इजहार किया। ఈ కేసులో ఆల్రెడీ స్పెషల్ టీమ్స్ ఫామ్ చేసినాము. ప్రత్యేకంగా పాత నేరస్తులు, తర్వాత అనుమానితులు, స్ట్రేంజర్స్, అంటే నిన్న ఎవరు వచ్చినారు, అది రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టేషన్, ఏ టైంలో ఎవరు వచ్చినారు అవన్నీ పరిశీలించడం జరుగుతుంది. ఈ చుట్టుపక్కల ఉండే CCTV కెమెరాలు, రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టేషన్ కూడా పరిశీలిస్తున్నాము. ఎక్కువ టీం ఫామ్ చేసినాము. जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल में वाक़ कोटा आबादी देहात के कस्तूरबा गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में जदीद तामीर करदा हज़ारबंदी का रियासती व असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल में वाक़ कोटा आबादी देहात के कस्तूरबा गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में जदीद तामीर करदा हज़ारबंदी का इफ्तिताह अमल में लाया और कहा कि शावाना मौसम के आगाज़ के मद्देनज़र बरोज़ जुम्मा को ग्राफ्स का इनेकाद अमल में लाने को काफ़ी खुशाइन बात करार दी और यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले इंटरमीडिएट तलबा के लिए अकामती स्कूल का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। కస్తూర్బా పాఠశాల యొక్క వసతి గృహ గదులు ప్రాంగణాన్ని ప్రారంభం చేసుకున్నాం. కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాల యొక్క కాంపౌండ్ వాల్ కూడా ప్రారంభం చేసుకున్నాం, పూర్తి చేసుకుని మన మోడల్ స్కూల్లో బాలికలకు వసతి గృహాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన దినం. హిందూ ధర్మం ప్రకారంగా శ్రావణ శుక్రవారం చాలా పవిత్రమైనటువంటి దినం. అందులో శ్రావణ మాసంలో శుక్రవారం ఆడబిడ్డల క్షేమం కోసం పూజలు చేసేటువంటి దినం శ్రావణ శుక్రవారం.
అది మొదటి శుక్రవారం. ఆ శ్రావణ శుక్రవారం నాడే కోసం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఈ శ్రావణ శుక్రవారం అయితే బాగుంటుందని MRPS के खादिन व कारकुनान ने टाउन सदर एम सुधाकर, जिले सदर लता, टाउन सदर महेश्वरी, रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट पोसानी के ज़ेरे निगरानी में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से की मुलाकात व दलितों के मसाइल के ताल्लुक से की नुमाइंदगी. इस्लामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से MRPS के खादिन व कारकुनान ने टाउन सदर मल्ला मारी सुधाकर, जिले सदर लता, टाउन सदर महेश्वरी व रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट पोसानी के ज़ेरे निगरानी में मुलाकात करते हुए दलित से मुताल्लिक़ मसाइल से वाकिफ करवाते हुए हल करने की ख्वाहिश की. इसी तरह से MRPS के खादिन व कारकुनान ने निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण से मुलाकात करते हुए तहनीत अमल में लाने के बाद दलितों से मुताल्लिक़ मसाइल पर तबादले ख्याल किया. ఎమ్మెల్యే గారిని కలవటం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే సుధాకర్ గారు టౌన్ అధ్యక్షునికి చేర్చిన తర్వాత మరి ఎమ్మెల్యేలను కలవలేదు కాబట్టి మరి సుధాకర్ను यूके के बाविखार BPP यूनिवर्सिटी से ओहदेदारान ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अलावा काकतिया यूनिवर्सिटी का किया मुशाहिदा. यूके के बाविखार BPP यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों ने तेलंगाना में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ MOU मुआहदा करने के तहत उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा काकतिया यूनिवर्सिटी का मुशाहिदा करते हुए तालीमी निफाज व तहक़ीक़ी सलाहियतों के मियार को जांचने के लिए तेलंगाना यूनिवर्सिटी का मुशाहिदा करके तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबेजात, कोर्सेस, फैकल्टी की अहलियत और तहक़ीक़ी सलाहियतों के ताल्लुक से ज़िम्मेदार ओहदेदारान से मालूमात हासिल की. जिले कामरेड्डी के विकास नगर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अमल में लाए गए डिजिटल बैंकिंग सर्विस का जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने इफ्तिताह अमल में लाया. जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने जिले कामरेड्डी के विकास नगर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क़याम अमल में लाए गए डिजिटल बैंकिंग सर्विस का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि हर एक फर्द डिजिटल बैंकिंग सर्विस की जानिब से फ्राहम करदा खदमात से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. कॉमनवेल्थ 2022 मुकाबलों का आगाज, शहर निज़ामाबाद से हुसामुद्दीन व निखत ज़रीन टीम इंडिया में शामिल. रियासत व जिले की अवाम के लिए बाइस फख्र. रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता का दौरा निज़ामाबाद. उनकी क़यादत से मुतासर होकर BJP सीनियर खाद कंजरला भूपति TRS में हासिल की शमूलियत. वो मुस्तहक़िन में किया CMRF चेक्स की तक़सीम. PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब आर्मूर हल्के में मंडल्स के इजाफे व तरक्याती कामों से मुतासर होकर अवामी नुमाइंदों ने इनसे मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर. कामारेड्डी में फिर एक बार चोरों की मनमानी. 3 घरों में चोरी करते हुए 21 तोला सोना व 2,15,000 रकम लेकर हुए फरार. तेलंगाना यूनिवर्सिटी का UK BPC यूनिवर्सिटी ओहदेदारों ने किया दौरा. तालीम मियार में इजाफा, मुख्तलिफ जदीद प्रोग्राम्स के आगाज के लिए अनकरीब मुआहदा करने के इम्कानात. आज के लिए फिलहाल इतना ही. इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दे इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.